ذوق کی قصیدہ نگاری۔ تعارف: شیخ محمد ابراہیم ذوق غالب کے معاصرین میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والے ایک ایسے شاعر تھے جنہوں نے دہلی کی ٹکسالی زبان میں غزل گوئی اور قصیدہ نگاری کی ایسی مثال پیش کی جس کے پیش نظر انہیں خاقانی ہند کے لقب سے نوازا گیا۔ سودا کے بعد بڑی تعداد میں قصیدے صرف ذوق کے ہاں نظر آتے ہیں۔ سودا اور ذوق اردو کے دو بڑے قصیدہ نگار کے روپ میں مشہور ہیں۔ جب بھی قصیدہ نگاری پر گفتگو ہوتی ہے تو ان دونوں شعراء کا نام لامحالہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہ بھی سوال اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ سودا قصیدے میں ذوق سے بڑا شاعر ہے یا ذوق قصیدے میں سودا سے بڑا شاعر ہے۔ پرانی تنقید بڑے چھوٹے میں بہت الجھتی تھی اور اس بات پر غور نہیں کرتی تھی کہ دونوں ایک دوسرے سے منفرد یا ممیز کیسے قرار دیے جا سکتے ہیں، اور یہی اہم اور اصلی چیز ہے جو ادب کے مطالعے کے لیے ضروری ہے۔ سبق کا مقصد: اس سبق کا مقصد شیخ محمد ابراہیم ذوق کی قصیدہ نگاری کا تجزیاتی مطالعہ پیش کرنا ہے اور ان کی قصیدہ نگاری کی خوبیوں میں فنی محاسن اور انفرادیت کو واضح کرنا ہے۔ ذوق کے کچھ قصائد کی عملی تنقید۔ قصیدہ: واہ واہ کیا معتدل ہے باغ عالم کی ہوا۔ یہ قصیدہ مغل بادشاہ اکبر شاہ ثانی کے بیٹے مرزا محمد ابو ظفر کے غسل صحت کی تہنیت میں لکھا گیا ہے۔ اسی نسبت سے بہار اور اس کی رعایت سے صحت کا مژدہ سنایا ہے، جیسے کہ یہ بہار کا موسم نہ ہو بلکہ کوئی طبیب ہو کہ جس نے ہر سو صحت کے ترانے چھیڑ دیے ہیں اور بیماری کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ چونکہ اس قصیدے کا موضوع صحت سے متعلق معلومات ہے، لہٰذا اس سے متعلق اس رعایت سے انہوں نے طبی اصطلاحات یا ادویہ کے نام یا ان سے متعلق تجربات کا اظہار کیا ہے۔ اس سے ذوق کے بین العلومی مجاز اور ان کے مطالعے کی وسعت کے لیے زبان سے تحسین کے کلمات ضرور نکلتے ہیں۔ جیسے ذیل کے کچھ اشعار پر ایک نگاہ ڈالیں۔ ہے گلوں کے حق میں شبنم مرہم زخم جگر، شاخ بشکستہ کو ہے باراں کا قطرے مومیاں، ہو گیا موقوف یہ سودا کا بالکل احتراق، لالا بے داغے سیاہ پانے لگا نشو و نما، پائی یہ اصلاح سفرا نے کہ دنیا میں کہیں، زرد چشم اب دیکھنے کو بھی نہیں ہے کہربا، ہر مزاج بلغمی میں ہوتی ہے تولید خون، چاندنی کا پھول ہو گر ارغوانی ہے بجا، نام کو اشیاء میں نئے تلخی رہی نئے سمیت، بن گئی تریاک افیوں زہر میٹھا ہو گیا، کیا عجب جدوار کی تاثیر گر رکھے زقوم، کیا عجب گر آب حنظل دیوے شربت کا مزہ، موتیا بند آنکھ میں اپنے جو رکھتی ہے صدف، اب رکھے ہے روشنی مثل دل اہل صفا، بھوک کی شدت سے اس کو ایک نفس فرصت نہ ہو، قرص سے خورشید کے جب تک نہ کر لے ناشتہ، کوس پھولا ہے خوشی سے نفق کا کیا دخل ہے، جو حباب اس کے نہیں مطلق شکم میں امتلا، ہضم کامل اس قدر معدے نے پہنچایا بہم، جید القیموس ہے جو حلق سے اترے غذا۔ پہلے شعر میں مستعمل لفظ مومیاں ایک دوا جس سے ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جاتی ہے، اب اسے شاعری میں تبدیل کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ موسم بہار کے صدقے میں شبنم پھولوں پر مرہم بن کر ٹپکتی ہے، اور اگر کوئی شاخ خزاں نے توڑ دی ہے تو بہار کے موسم میں ہونے والی بارش اور اس کے قطرے ان شکستہ شاخوں کے لیے مومیا بن جاتے ہیں۔ کیا یہ شاعری نہیں ہوئی؟ رعایت اور مناسبات کا فنکارانہ استعمال یہاں کون کہے گا کہ نہیں ہوا ہے؟ دوسرے شعر میں لفظ سودا اور احتراق طبی دنیا سے تعلق رکھنے والے الفاظ ہیں۔ ہمارا جسم چار طرح کے سودا یعنی خلط سے بنا ہے: سودا، صفرا، بلغم، خون۔ یہ سب کے سب گاڑھے قسم کے مادے ہیں۔ احتراق بیماری کا نام ہے جس میں بیمار کی خلط مزاج میں حدت کی وجہ سے جوش کھاتی ہے۔ اب اس رعایت سے موسم بہار کی صفت بیان کی گئی ہے یا اسی کے اثرات کا مطالعہ کیا گیا ہے کہ اس موسم کی بدولت سودا کا احتراق ہو گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب سودا کا احتراق ہو گیا ہے تو لالا جس کے سینے پر پیدائشی داغ ہوتا ہے اب ایسے لالے نشوونما پانے لگے ہیں جن پر وہ داغ ہے ہی نہیں۔ اسی طرح صفرا لفظ
زرد چشم کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی جسے پیلیا بیماری کہتے ہیں، اس کا ذکر کیا ہے۔ کیا یہ جملہ توضیحات اس امر کی گواہی نہیں دیتے کہ قصیدے کی شاعری نری شاعری نہیں بلکہ شاعری اور علم کے جمال و امتزاج کو سامنے لاتی ہے؟ اگر نقاد جسے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کس نوع کی شاعری ہے تو خواہ کی ادبیت یا شعریت کا رونا روئے گا، جیسا کہ کلیم الدین احمد نے اس کا رونا رویا ہے۔ ذوق کا نام لیے بغیر، تاکہ قاری ذوق کا قصیدہ پڑھ کر کلیم الدین احمد کے جھول کی گرفت نہ کرے، ان کے ایک قصیدے کے تشریف کے 11 اشعار نقل کرتے ہیں اور اپنی کتاب اردو شاعری پر ایک نظر میں صرف 3 الفاظ لکھ کر ذوق کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لکھتے ہیں آورد آورد آورد، صفحہ 190، اور بس کام تمام۔ ذرا آپ ایک بار اور غور کیجئے کہ مندرجہ ذیل قصیدہ شب کو میں اپنے سر بستر خواب راحت کے بیانیہ اسلوب میں واحد متکلم میں کس کا میں ہے؟ شاعر کا یا کسی ایسے عالم کا میں ہے جسے اپنے علم پر ناز ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس قصیدے کی تشبیب کا میں قرون اولیٰ کا مسلمان ہو؟ اگر یہ مان لیا جائے تو کلیم الدین احمد کی رائے کہاں چلی جائے گی؟ وہ بغیر سوچے سمجھے صنف کی فطرت، اس کی ضرورت اور اس کی روایت کا گہرا شعور نہ ہونے کے باوجود اسی طرح کا جارحانہ انداز اختیار کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ دراصل قرون اولیٰ کے مسلمان کا کنایہ ہے۔ غور کیجئے کہ ذوق نے کن کن علوم کی طرف اشارے کیے ہیں اور ان کا موجود کون ہے۔ قواعد، علم صرف، علم نحو، منطق، اشارات و شفا، اشراق، نفی حقائق، معتزلی ہندس، مالوف، ضرب و قسمت، حیت، علم نجوم۔ کیا ہم سب کو کلیم الدین احمد کو ان علوم کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ لیکن یہ تو معلوم ہے کہ قرون اولیٰ کے مسلمان ان علوم میں طاق تھے۔ یہ قصیدہ گو ہی تھا جو مدح سے قبل بادشاہ کو اپنے علمی خزانے سے مدح کے بہانے نہ کہ صرف واقف کراتا تھا بلکہ کنایتاً اس ذیل میں اقدامات کے لیے اس میں جوش پیدا کرتا تھا۔ ان کا قصیدہ واہ واہ کیا معتدل ہے باغ عالم میں ہوا میں علم نباتات کے علاوہ سب سے زیادہ طب اور حکمت کی تراکیب و الفاظ نیز اصطلاحات کا استعمال کیا گیا ہے۔ آئیے اب ان کے زیر بحث قصیدے کے کچھ منتخب اشعار پر ایک نگاہ ڈالیں۔ شب کو میں اپنے سر بستر خواب راحت، نشہ علم میں سر مست غرور و نخوت، مزے لیتا تھا پڑا علم و عمل کے اپنے، تھا تصور میرا ہر امر میں تصدیق صفت، ذہن میں سب میرے حاضر صور علمیہ، پر جتانی نہ تھی منظور مجھے علمیت، کبھی میں کرتا تھا تصریح معانی و بیان، کبھی میں کرتا تھا توضیح نجوم و حیت، کبھی تقسیم فرائض، کبھی تفہیم اصول، کبھی تعلیم عقائد و کتاب و سنت، کبھی تھا علم الہی کی طرف ذہن رسا، کبھی کرتی تھی طبیعت میں طبیعت جودت۔ مذکورہ والا اشعار میں علم معانی و بیان جس سے ہم سب واقف ہیں کا ذکر ہے۔ علم نجوم اور علم حیت ایک ستارہ شناسی کا دوسرا علم ہے جس میں اجرام فلکی اور زمین کی گردش سے بحث کی جاتی ہے، اور علم طبیعی ہے جس میں چیزوں کی خاصیت کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے علوم کے نام لیے ہیں۔ اندازہ یہ ہوا کہ ذوق پہلی سطح پر تو اپنے قصیدے میں خود ہی ایک ممدوح نظر آتے ہیں، لیکن داخلی ساخت میں ان قصیدوں کا مقصد ماضی کی بازیافت بھی ہوتی ہے۔ ذوق نے خوشی کی جو تمثیل زیر تبصرہ قصیدے میں پیش کی ہے اسے سید امداد امام حسن نے سودا کے مقابلے کمزور گردانا ہے، اور کلیم الدین احمد نے بھی کچھ اسی نوع کا فیصلہ صادر فرمایا ہے۔ یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے یہ ثابت کہاں ہوتا ہے کہ ذوق کے ہاں خوشی کی تمثیل سودا کا چربہ ہے، بلکہ ذوق تو کسی قدر اپنے شاعرانہ جوہر کا استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثلاً لگ گئی آنکھ میری دیکھتا کیا خواب میں ہوں، کہ مجسم نظر آتی ہے نوید بہجت، اللہ اللہ رے حسن اس کا کہ سر تا بقدم، تھا وہ خالق کا تماشائے ظہور قدرت، یاد کرتا قدیرانہ کو ہے اس کے زاہد، دگم تکبیر جو کہتا ہے صداقت قامت، چشم وحشی کو اگر اپنی وہ دکھلائے تو ہو، چشم آہو سے ہرن نشے جام وحشت، آتش حسن سے ایک شعلہ شرش بینی، موج دود لطیف اس کے بھوؤں کی حالت،
फौज मिज़गां वो बला होवे सफ़ारा तो करे, दस्ते बेदास से यकदस्त दो आलम गारत, चाहे बाबुल वो ज़क़न और धुआं जुल्फ़ का अक्स, दिल गिरफ्तार अज़ाब उसमें हो या हारूत सिफत। लाल शीरी की हलावत पे जो दे जां आशिक, तो दमे नज़ा भी उन्नाब का चाहे शरबत, न दमे शर्ब तबस्सुम से लब उसके खूगर, न दमे शर्ब तबस्सुम से लब उसके खूगर, न तगाफुल से उन आँखों की निगह की आदत, खोल दे मानिए मादूम कमर की जुम्बिश, वा करे उक़्दे मौहूम लबों की हरकत, शोखी व नाज की तारीफ़ में उसकी मतला, वो पढ़ूँ मैं कि जिसे सुन के हो दिल को फरहत। गौर कीजिए कि सौदा के कसीदे से इस कसीदे का तकाबुल सही भी है या नहीं। दोनों कसीदे लाफानी हैं, लेकिन ज़ौक़ का कसीदा सौदा के मुकाबले ज़्यादा तवील है। सौदा ने सिर्फ़ एक तमसील पेश की है और बस, कोई दूसरा पहलू इस कसीदे में नहीं है, जबकि ज़ौक़ ने जैसे कुरून उला के मुसलमानों के खो जाने का किस्सा सुनाया है, साथ ही खुशी की तमसील भी पेश की है और फिर सबाह ईद की मंजरकशी की है। इन जुमला निकात के पेश नज़र ये कहना ज़्यादा सही है कि ज़ौक़ और सौदा दोनों अपने अपने रंग के कसीदे के अहम शायर हैं। आइए उनके दीगर कसीदों में मुस्तमल इल्मी निकात पर एक निगाह डालें। बहादुर शाह की मद में एक कसीदा है, मेरे आबला दिल के तमाशा गौहर, यानी जिसकी रदीफ़ गौहर है, और एक इल्मी नुक्ता बयान किया है। दिल आशिक में करे क्यों ना आंसू सुराख, इसी अलमास से जाता है ये बेंधा गौहर। कसीदा लाता नए रंग से है रंग नए चरख़ मुहील के मुंदरजा शेर की, जितना खुर्शीद तपे उतनी ही बारिश हो सेवा, होवे क्यों कर तपिशे इश्क न रहमत की दलील। इश्क खिंचवाए है एक ज़ारे जफ़ा कश से बज़ोर, बारे सद कोह अलम बेअमले जुर्र सकील। दर्ज बाला शेर में एक साइंसी हकीकत बयान हुई है कि खुर्शीद के तपने से यानी गर्मी की वजह से बारिश ज़्यादा होती है। इसी तरह शेर नंबर 2 में अमलन जर्र सकील यानी ज़मीन में कशिश की क़ुव्वत होती है। फ़न कसीदा निगारी के उसूलों में कसीदों के मतलों की बड़ी अहमियत है। ज़ौक़ ने अपने कसीदों के मतलों पर सौदा के मुकाबले कम तवज्जो दी है, फिर भी अगर उनके मतले सौदा से सिवा नहीं तो कमज़ोर भी नहीं है। ज़ेल के चंद मतलों पर एक निगाह डालें। नंबर 1, वाह वाह क्या मोतदिल है बाग़ आलम में हवा, मिस्र नब्ज़े साहिब सेहत हर मौजे सबा। है मेरे आबला दिल के तमाशा गौहर, एक गुहर टूटे तो हूँ कितने ही पैदा गौहर। ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, आया हो खामे से तहरीर नगमा जाए शरीर। तरब अफ़ज़ा है वो नवरोज़ का नारंजी रंग, देख कर भागे जिसे रंज हज़ारों फरसंग। लाता नए रंग से है रंग नए चरख़ मुहील, वाह बिगड़ा है कुछ उसी खुम में अजब रंग से नील। वो अब्र दुरफ़शां है चमन में ख़याल के, आशिक निहाल क्यों ना हो आशिक निहाल के। सावन में दिया फिर मह शव्वाल दिखाई, बरसात में ईद आई कदहकश की बनाई। तीसरे मतले में कहा है कि अगर बादशाह की तारीफ़ कीजिए तो मारे खुशी के कलम से मौसीकी उभरती है। रियायत यह है कि जब कलम सफ़े किरतास पर चलता है तो लिखते वक्त आवाज़ निकलती है। उस आवाज़ को मादेह ने खुशी का नगमा करार दिया है। बाकी के दीगर मतलों को भी कसीदे के मौजू और ममदूह की रियायत माना आफरीन बनाया गया है। बलीग कसीदा निगारों के मतन में मतला और तशबीब के बाद गुरेज़ का अमल फ़नकारी और आमद की कैफियत रखता है। रहा सवाल ज़ौक़ के कसीदों की तशबीब का, तो उनके यहाँ बहारिया तशबीब तो है ही, साथ ही उनके कसीदों की तशबीब का हावी मजमून इस्तिलाहात इल्मी या उमूर इल्मिया का बयान है, जिस पर अभी गुफ्तगू की गई। लेकिन उनके गुरेज़ के मुतालिक नाक़दीन की ये राय है कि उनके यहाँ गुरेज़ सौदा के मुकाबले कमज़ोर है। जैसे बहादुर शाह के गुस्ल सेहत के कसीदे में सेहत व तिब से मुतालिक इल्मी निकात बयान करते हुए गुरेज़ की तरफ यूँ आते हैं। इस कदर जाती रही आलम से बीमारी की आज, नाम गुलशन में नहीं है नरगी से बीमार का। वाक़या किस तरह से सेहत न एक आलम को हो, जबकि हूँ उसकी नवेदे गुस्ल सेहत जाँ फ़िज़ा। वो वली अहदे ज़मा मिर्ज़ा मोहम्मद बू ज़फ़र, उसकी क़ुव्वत गर ज़ईफ़ों को बना दे अक़विया।
ये गुरेज आउट से बाहर आमद की मिसाल है। एक और मुकाम पर गुरेज का अमल देखें कि जहाँ बयानिया उसलूब है। वाक़या निगारी के ज़रिए अपने ममदूह की बड़ी अनोखी तारीफ़ की है। ईद का दिन है, खुशी से सब गले मिल रहे हैं और मादे मायूस बैठा है। एक शफीक और मेहरबान से ये बावर कराता है कि ए मादे, तू बादशाह वक्त का सबसे बड़ा खिदमतगार है और माना कि बड़ा काने वाक़े हुआ है, लेकिन दुनिया में बिन मांगे कुछ नहीं मिलता। जा बादशाह से अपना अहवाल अर्ज़ कर। और फिर गुरेज यूँ होता है, जब सुने उस आशना के मुँह में मैंने ये कलाम, वो वहीं खिदमत में तेरी ये कह के मैं हाजिर हुआ। और फिर मदह का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस कसीदे में एक काने इंसान का किरदार उभरता है। फिर ज़माने के मुताबिक ख़ुद को ढालने का जवाज़ भी सामने आता है। इसी तरह कसीदा शब को मैं अपने सरे बिस्तर ख्वाब राहत में, जैसा पिछले सफ़े पर जिक्र किया गया है, मादे ख्वाब में इल्म की दुनिया की सैर करता है और अचानक ये भी सामने आती है कि फ़ायदा क्या जो हर एक इल्म की जानी तारीफ़, फ़ायदा क्या जो हर एक फ़न की खुली माहियत। अगर गुरेज का ये सिलसिला दराज हो जाता है तो जो ज़ौक़ के मुआसरीन या सौदा के यहाँ 2, 3 या 4 अशार में मुकम्मल होता है। ज़ौक़ ने बाज़ाब्ता गुरेज को एक नज़्म की शक्ल अता की है जिसमें इल्म को हेच जाना है। फिर आँख लगते ही खुशी मुजस्सम होकर सामने आती है। इस गुरेज के बाद फिर खुशी मादे है, यानी उस परेशान हाल किरदार को दुनिया की नैरंगी का मुजदा सुनाती है, उसे ढारस बधाती है और कहती है कि आज तो ईद की खुशी का दिन है। और फिर गुरेज यूँ होता है, फ़िक्र कर तहनीत ईद का इस शाह की तो दौर में जिसके है हर सुबह सबाह दौलत। सुनते ही मैंने भी वो मतला रोशन लिखा, मतला सुबह को हो सामने जिसके खजलत। और फिर मध्य का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्या गुरेज दर गुरेज की इस तकनीक से ये ज़ाहिर नहीं होता कि ज़ाती कसीदे में गुरेज की अहमियत से ज़ौक़ न सिर्फ वाकिफ़ हैं बल्कि उन्हें उसे बरतने का फ़न भी खूब आता है। महमूद इलाही का ख़याल या उनके नताइज गुरेज के सिलसिले में किए गए राकिम के तज्ज़िये की रोशनी में बहुत ज़्यादा सही नहीं मालूम होते। अगर इस अम्र की असल वजह तलाश की जाए तो ज़ौक़ ने कसीदा निगारों के इस इल्ज़ाम को रद्द किया है कि कसीदा महज माली मनफ़ात की खातिर की जाने वाली भट्टई है, शायरी नहीं। साफ़ तौर पर ये नज़र आता है कि ज़ौक़ बहैसियत फ़र्द इस माशरे में बादशाह वक्त को अपना आइडियल और मुहाफ़िज़ जान रहे थे। ज़ौक़ ही क्या, उस अहद के अंग्रेज़ हुकूमत के बागी भी उस वक्त जब बादशाह ज़फ़र बूढ़े हो चुके थे उसे अपना रहबर और सरदार बनाकर आज़ादी की पहली जंग लड़ना चाह रहे थे। इस तनाजुर में ज़ौक़ ने अगर बादशाह अकबर और फिर अबू ज़फ़र की शान में कसीदे कहे तो उसका मकसद असली उनसे ज़ौक़ की अक़ीदत थी, ना कि भट्टई या खुशामद। ज़ौक़ और दीगर कसीदा निगारों के जहन में अपनी कौम का माजी था और वो उसी रोशनी में अपने ममदूह की तारीफ़ करते थे। फिर ज़ौक़ का ज़फ़र और अकबर से अक़ीदत का रिश्ता था। भले ज़फ़र बहादुर न रह गए हों, ताकत छिन गई हो, लेकिन उनकी रियाया परवरी, अदल पर तवज्जो और नेक नफसी से उस अहद का कौन मुअर्रिख़ इनकार कर सकता है। लिहाजा ज़ौक़ की मिदहत तराज़ी सर तापा तख़ीली या मुबालगे का पहाड़ नहीं, अक़ीदत के फूल मालूम होती हैं। आइए बहादुर शाह की सिफ़ात पर एक निगाह डालें जो ज़ौक़ ने बयान की हैं। मुसहफ़ रुख़ तेरा ए साए रब्बुल इज़्ज़त, खोल दे मानिए अतममतु अलैकुम नेमत। तेरा दरवाज़े दौलत है मकाम उम्मीद, तेरा दीवान अदालत है महल इबरत। तेरी तदबीर पुरज़ दफ्तर होश व फरहंग, तेरी शमशीर पुरज़ जौहर फ़तह व नुसरत। अदल के लफ्ज़ को देता नहीं नुक्ता कोई, अदल से तेरे जो मौक़ूफ़ है रस्म रिश्वत। अहद में तेरे अजब क्या सरदाग़ दिले शम्मा, शोले में मरहम काफूर की हो खासियत। अहद को देख तेरे साथ खलायक का हुजूम, कहे आरिफ की ये कसरत में है ज़ाहिर वहदत। आप मज़कूरा वाला सिफ़ात पर निगाह डालें जिनकी तरफ ज़ौक़ ने हमारी तवज्जो मुनतिफ़ कराई है, तो आप आसानी से उन्हें निरे मुबालगे के दायरे में नहीं ला सकते, क्योंकि उनमें नाज़िर की अक़ीदत शामिल है। इतना ही नहीं, उसकी कवी हमीयत और उस अहद का दुख भी शामिल है, क्योंकि उस वक्त मग़रिब की बालादस्ती कबूल करने पर हम मजबूर हो गए थे। उर्दू के दीगर कसीदा निगारों के मुकाबले ज़ौक़ और उनके मुआसरीन में ज़ौक़ के यहाँ नौ आबादियाती जबर के ख़िलाफ़
अपनी सी एक एहतजाजी आवाज़ भी सुनाई देती है। मसलन वो कहते हैं, जानिबे शर्क है नूर ये फलक बाल कुशा, जानिबे गरब है परवाज़ गुराब जुल्मत, तेरी शमशीर के आगे नहीं रखती हरगिज़, मगरबी तेग मह नौ की शहारुत दास, चमके गर मशरिक से उसका शोले खुर्शीद कहर, जल उठे मगरिब में शहर उंदुलस की तीलियाँ, फ़िक्रे फ़रंग दानिशो यूना, आगे तेरे तिफले दबिस्तां, तू है वो बाहर तो है वो माहिर तो है वो बीना तो है वो दाना, उसके दंदा पे नहीं गौर से देखा मैंने, किश्वरे जंग में आए हैं फ़रंगी बचकां। मज़कूरा वाला अशार में शर्क़ व ग़र्ब का तकाबुल, मगरबी तैग की तनकीस, मगरिब के शहर का मशरिक़ के शोलों से जल जाने का मुजदा और फ़िरंगी फ़िक्र को मशरिक़ के अफ़कार के आगे तिफले दबिस्तां करार देना, क्या कसीदे की शायरी में मशरक़ी बादशाहों की तारीफ़ के माना ये नहीं करार पाए कि कसीदा को मशरिक़ के खोए हुए जहानों की तलाश करना चाहता है और उसे मगरिब की ज़हनियत का भी बखूबी अंदाज़ा है, साथ ही उनके इल्म व दानिश की नारसाइयों का भी पता है। ये दरअसल मशरिक़ की बाज़याफ्त का वही शऊर है जो बाद में एडवर्ड सईद के यहाँ नज़र आता है। कसीदा को शायर बादशाह की रियाया परवरी, नेकी, शराफत, बहादुरी वगैरह की मद मुबालगे के साथ करता है। हर कसीदा को शायर बादशाह के अदल पर खुसूसी तवज्जो देता है। ज़ौक़ भी अदल गुस्तरी की तारीफ़ें हर कसीदे में की हैं, क्योंकि एक सालेह मुआशरे की तश्कील में अदल का बहुत अहम रोल होता है। शाह के अदल व इंसाफ का शेरी बयानिया मुलाज़ा फरमाएँ। कोह का ज़हरा करे आप तेरी हैबत अदल, गर ये सुन पाए कहीं संग ने तोड़ा गौहर, तेरे इंसाफ से है बज़्म जहाँ में शाहा, शमे गुलगीर से और शम्मा से महफूज पतंग। अपनी गुफ्तगू ख़त्म करने से कबल इस हकीकत की जानिब आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ कि कसीदे में मदह खा वो बादशाह की नेकी, शराफत या शुजाअत की हो या अदल की, उसका रिश्ता उस बादशाह से ही नहीं बल्कि उन बादशाहों से भी होता है जिन्होंने माजी में अपने अदल के ज़रिया एक सालेह मुआशरे की तश्कील की हो। उसका रिश्ता उस तौसीफ़ी और तारीफ़ी मतन से भी है जो माक़बल कसीदों में बयान हुआ है। मसलन सौदा ने भी हज़रत अली के अदल के सिलसिले में शेर कहा था कि हैबत अदल ये तेरी है कि हर दश्त में शेर, वास्ते दर्द सरे आहू के घिसे है संदल। ज़ौक़ के सामने अदल की मद का एक मतन है और हमें उस मतवायद के हिसाब से ही उस अदल की कैफियत का मुताला करना चाहिए। ये नहीं कि हम एक मुअर्रिख़ की तरह उसकी सच्चाई तलाश करने लग जाएं। ज़ौक़ के सामने बादशाह कम सौदा ज़्यादा है, यानी वो शेरी बयानिया या मतन जिसे वो आगे बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि कोह का ज़हरा करे आप तेरी हैबत अदल, यानी कोह थर्रा उठता है उस वक्त जब ये सुनता है कि किसी पत्थर ने गौहर को चकनाचूर कर दिया है। जाहिर है पत्थर का रिश्ता कोह ही से तो है, वो उसकी औलाद है और बाप को खौफ में वो बच्चा तो मुब्तला कर ही देता है जिसने किसी का सर पत्थर से फोड़ डाला हो। उस वक्त ये खौफ और बढ़ जाता है जब हुक्मरान हद दर्जा अदल परस्त हो। इस हकीकत से भला कौन इनकार कर सकता है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि ज़ौक़ और कसीदा दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मलज़ूम का दर्जा रखते हैं। वो फितरी कसीदा गो शायर मालूम होते हैं जिनका मकसद कसीदे के ज़रिया माजी की अपनी विरासत का तहफ़्फ़ुज़ और एक सालेह मुआशरे की तश्कील का ख्वाब है। सौदा उर्दू के बुलंद पाया कसीदा निगार हैं, लेकिन ज़ौक़ उर्दू कसीदा निगारी में खाकानी हिंद ज़रूर हैं, उससे इनकार करना मुश्किल मालूम होता है।